I never did game development in my life, but in this video, I'm going to build a complete Android game from scratch using just Kotlin and show you exactly how I did it. And the craziest part I like about this project? Well, I used no game engines, no fancy tools, just pure Android code. And by the end of this project, I had a playable game on iPhone. And this project is a proof that you don't need to be a master to create something like this. See, many of you know this thing that I used to be an Android developer and not a game developer. Obviously, later I transitioned to be a Java developer, but when I started my journey, I was an Android developer and I like to build apps. But कुछ दिन पहले I got curious, like how hard could it be to make a simple game? So I challenged myself that क्या मैं सिर्फ Kotlin की knowledge से एक game बना सकता हूँ in just one day without touching Unity or any game engine? Turned out, yes I can. See, first thing I needed was a concept. Obviously मैं कोई अगला Call of Duty बनाने का नहीं सोच रहा था, so I went for the simple but addictive thing. So जब मैं इस गेम को डिजाइन करने का सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में एक गेम आया जो मैं वीडियो गेम्स में बचपन में खेला करता था, which is Tetris. अभी तो खैर मुझे इस गेम का नाम पता भी है, लेकिन बचपन में तो बस खेलने से मतलब हुआ करता था. Well, let me know in the comment section like have you played this game? खैर, so I named this game as Tap Dodge. अब यहाँ आइडिया सिंपल था, एक प्लेयर होगा स्क्रीन के बॉटम में इन द फॉर्म ऑफ सर्किल एंड ऊपर से कुछ एनिमीज गिर रहे होंगे एंड वो भी फॉर्म ऑफ सर्किल्स ही होंगे. अब जो नीचे वाला सर्किल होगा विच इज आवर प्लेयर, ऑब्वियसली वो ऊपर से गिर रहे सर्किल से बचने की कोशिश करेगा बाई टैपिंग लेफ्ट और राइट एंड ट्राई टू सर्वाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल. यू नो द क्लासिक आर्केड वाइब. साउंड्स इजी, राइट? वेल, दैट्स व्हाट आई थॉट, बिकॉज देन आई रियलाइज्ड आई नीड कोलिजन डिटेक्शन, स्मूथ एनिमेशंस, गेम स्टेट मैनेजमेंट और एक स्कोरिंग सिस्टम. एंड देन सडनली दिस सिंपल गेम वाज लुकिंग प्रीटी कॉम्प्लेक्स, बट आई वाज कमिटेड टू दिस चैलेंज, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप. सो मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोला एंड क्रिएटेड अ न्यू प्रोजेक्ट एंड नेम्ड इट Tap Dodge. Language is obviously Kotlin, and here's the most important part. I selected Compose activity because I built everything with Jetpack Compose. For the dependencies and libraries, well, मैंने सिर्फ Jetpack Compose का यूज किया. कोई भी external frameworks नहीं, ना ही कोई physics engine, just pure Android development tools. Now I needed to design my game objects. यहाँ पर मेरे पास दो objects थे. One is player and second is enemies. Well, in Kotlin programming, we use data classes to represent the objects. अब इन data classes में there are some properties which are like the player has x and y coordinates for the position, जिससे कि मैं उसकी लेफ्ट और राइट पोजीशन का ट्रैक रख सकूं, प्लस अ रेडियस फॉर द साइज. नाउ द एनिमी क्लास हैज आल्सो द सेम स्टफ बट विद एडिशन टू आईडी एंड अ स्पीड प्रॉपर्टी सो दैट आई कैन मेक देम फॉल एट डिफरेंट रेट्स. एंड देन आई क्रिएटेड दिस गेम स्टेट इलम, सो मैं इस चीज का ट्रैक रख सकूं कि गेम अभी इस वक्त किस स्टेज पर है, लाइक वेदर द प्लेयर इज ऑन द मेन मेन्यू या फिर वो गेम को इस वक्त खेल रहा है या फिर फाइनली द गेम इज ओवर. एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट आई वाज हैविंग मिक्स्ड फीलिंग लाइक एवरीवन एल्स कि क्या ये बन भी पाएगा या फिर मे बी आई एम ऑन द राइट ट्रैक. Well, one more thing. I could have structured this code in separate files and always remember this thing. When working in professional projects, we should always structure our code. But I was so excited to make it. So अभी इस कोड के स्ट्रक्चर को इग्नोर मारना. Now, अब टाइम आ गया था गेम को एक्चुअली बिल्ड करने का. Well, when we do Android development using Jetpack Compose, we use a composable called Canvas for custom drawing. Basically, the canvas is like a drawing board. We can manually draw circles, set colors, control positions, etc. बाकी अभी इस पार्ट को थोड़ा इग्नोर करना. But the thing is, इसको यूज करके हम डायनेमिक डेटा को हैंडल करते हैं एंड जब भी एनिमीज या प्लेयर की वैल्यू चेंज होगी तो गेम का यूआई खुद को अपडेट कर देगा. अब इन दोनों फंक्शंस का यूज करके मैंने प्लेयर एंड एनिमी सर्कल्स को बनाया. नाउ अब इस कोड की हेल्प से मैं हर फ्रेम पर एनिमीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं बाय अपडेटिंग देयर वाई पोजीशन. और जो एनिमीज स्क्रीन के बाहर निकल जाएंगे उनको फिल्टर आउट कर दिया जाएगा टू सेव आवर मेमोरी. और ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं. नाउ एनिमीज के गिरने के रेट को मैंने रैंडम प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज करके इंप्लीमेंट किया. एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे जैसे स्कोर बढ़ेगा वैसे वैसे एनिमीज के गिरने की स्पीड भी बढ़ती जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ दैट द गेम गेट्स डिफिकल्ट एज यू प्ले. नाउ अब एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर चीजें थोड़ा सा ट्रिकी होने लग गई थी, विच वाज मैंने चीजें इंप्लीमेंट तो कर ली थी, लाइक वो चीजें कैसी दिखेंगी और उनकी स्पीड नीचे गिरने पर कैसी होगी, लेकिन वो चीजें स्क्रीन पर स्मूथ भी तो दिखनी चाहिए ना. एंड वी नो दिस थिंग दैट गेम में चीजें कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती हैं, राइट? एंड सिंस आई एम नॉट यूजिंग एनी इंजन, सो चैलेंज था कि मैं इस चीज को अचीव कैसे करूं. वेल, अब यहाँ पर मैंने एक कोरूटीन बनाया ऑफ नेम लॉन्च इफेक्ट जो कि बैकग्राउंड में रन करेगा और हर 16 मिली सेकंड्स में यूआई को अपडेट करेगा. एंड दैट्स रफली अराउंड 60 फ्रेम्स पर सेकंड, जो कि जनरली गेम्स का स्टैंडर्ड फ्रेम रेट्स भी होते हैं. अब ये कोरूटीन क्या है? वेल, इसको आप मल्टी थ्रेडिंग की तरह समझ सकते हो बट इन अ फास्टर वे. लेट्स नॉट गो डीपर इनटू दिस टॉपिक, अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. खैर, फिर बारी आती है मोस्ट क्रिटिकल पार्ट की, विच वाज कोलिजन डिटेक्शन. एंड आई एम नॉट गोना लाई, फॉर दिस वन आई गॉट स्टक फॉर फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, सो आई केम अप विद सम मैथ्स. एंड यस, गेम डेवलपमेंट में यू कैन नॉट इग्नोर मैथ, लेकिन कोई भयंकर वाली मैथ नहीं, जस्ट दिस वन. बेसिकली यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इफ द डिस्टेंस इज लेस देन द सम ऑफ देयर रेडियाई,
then the circles are overlapping, and here in this case colliding. It's like 10th class की mathematics. Do you remember this? Let me know in the comment section. And damn, when this code first worked, I literally jumped out of my chair. I could literally see जब player को enemy hit कर रहे थे and bam, instant game over. It felt like actual magic. Now इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद setting those left tap and right tap control, damn, that was another interesting challenge. अब देखो, we know this thing कि मोबाइल फोन्स पर हर चीज टच बेस्ड होती है, राइट? नाउ अब इस चीज को अचीव करने के लिए मैंने इस कोड की हेल्प से स्क्रीन को दो इनविजिबल एरियाज में स्प्लिट कर दिया, जिससे कि लेफ्ट साइड में टैप करने पर हमारा प्लेयर लेफ्ट साइड में जाएगा और राइट साइड में टैप करने पर हमारा प्लेयर राइट साइड में मूव करेगा। सिंपल, बट इट वर्कड परफेक्टली। नाउ अब इन दोनों लाइंस की हेल्प से मैंने हमारे प्लेयर की बाउंड्रीज को सेट कर दिया, जिससे कि अगर कोई जो बंदा खेल रहा है इस गेम को, वो अगर ज्यादा बार टैप कर देता है लेफ्ट या राइट को, तो भी हमारा प्लेयर स्क्रीन के अंदर ही दिखाई देगा। ऑब्वियसली दैट वाज अनदर एज केसेस। नाउ अब बेसिक लॉजिक्स वगैरह हो जाने के बाद इस वाले कोड की हेल्प से मैंने गेम को थोड़ा सा मॉडर्न लुक देने की कोशिश की। डैम, ऑनेस्टली व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई थॉट आई वुडंट बी एबल टू मेक इट, बट व्हेन आई फिनिश्ड अराउंड राइटिंग दीस 300 लाइंस ऑफ कोड विदाउट यूजिंग यूनिटी, अनरियल इंजन या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स, डैम, इट वाज जस्ट अ ब्लिस। एंड नाउ फाइनली द गेम प्ले। लेट मी शो यू हाउ एडिक्टिव इट इज। Damn, this is actually fun to play. And remember, the entire thing was built in about 6 to 8 hours of actual coding. Imagine what's more possible अगर इसमें और भी ज्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि इस गेम में हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। Like first is sound effects would be awesome, like explosion sound effects, background music, etc. Second is different type of enemies, maybe faster ones, bigger ones. Third one is particle effects when things collide. And fourth one, multiple levels with different themes and background. Well, the possibilities are endless, and that's why I always say in my videos ki your existing skills are transferable. Start small, but don't be afraid to dream big. Tools are just tools. Creativity and problem solving matter more. Just like DSA is also a tool to solve certain types of problems. And this game is a proof that ki aap apni basic programming knowledge se and willingness to learn anything, well, you can build pretty much anything. Remember, you are more capable than you think you are. So stop making excuses and start making things. और मैं इस गेम की APK फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो इस गेम को खेलकर बताओ कि आपका हाईएस्ट स्कोर क्या रहा फर्स्ट अटेम्प्ट में। आई लव टू नो दैट। एंड डोंट वरी, गेम में कोई भी मालवेयर नहीं है, ना ही आपसे कोई परमिशन ली जाएगी। जस्ट प्ले एंड टेल मी योर स्कोर। और अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन में कोई बग मिलता है या इंप्रूवमेंट सजेस्ट करनी है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। करेंटली मेरा पर्सनल बेस्ट स्कोर ये है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन बीट माई स्कोर। इस एक्सपीरियंस से मुझे एक और इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई, दैट वी ऑफ्टन लिमिट आवरसेल्व्स विद लेवल्स, लाइक मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं मोबाइल डेवलपर हूँ, या फिर मैं गेम डेवलपर नहीं बन सकता। बट रियलिटी ये है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एंड अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना आता है, डेटा स्ट्रक्चर समझते हो, यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोच सकते हो, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हु नोज, टुडे इट वाज अ गेम, मे बी टुमारो इट कुड बी एन AI एप्लीकेशन। बेसिकली डोंट बॉक्स योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट करो, फेल करो, लर्न करो एंड इवेंचुअली इंप्रूव करो। एंड दैट्स हाउ रियल ग्रोथ वर्क्स। सो दैट्स हाउ आई वेंट फ्रॉम डेफिनेटली नॉट अ गेम डेवलपर, वेल, समवन हु कुड एक्चुअली बिल्ड अ ठीक ठाक सा गेम। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।